so nice. तुम लोग को मजा आया, हमको सुन के They अच्छा लगा. really worked hard, Alka ji, and the kind of hard work that the three of put in. Oh, how nice, how nice, how nice. किसी को मजा आए तो हमको भी अच्छा लगता है ना. अच्छा, तो एक बार मैं should I close my video now? No, let it be. Why do you want to close it? तुमको देखने का You always मजा. said to join 1 minute before. Say that Supriya, again. They all said ki join after just 1 minute before 7. That's okay. 5 minutes. That's okay. कितना बजा अभी? अभी 10 मिनट है. वो 10 मिनट है तो चलो बात करते हैं ना, इतने दिन बाद देखने को मिले. बिल्कुल. हेलो, हाय, नमस्कार. अरे सुरेखा, देखे तो There you तुमको are. Hi. कहाँ छिपी हुई हो? हाँ, जम रही हो आज तो. Yeah, Priyanka, now there's a event of mine which is started. I'll talk to you after. Okay. पियानी जी के सामने क्यों नहीं सजी? सुप्रिया. हाँ अलका जी, नमस्कार. नमस्कार. अरे टिपियानी जी के सामने क्यों नहीं सजी? वो टिपियानी जी के सामने सजेगी कि मेरे सामने सजेगी? अनुराग, तुम तो हमारे लिए वो हो. टिपियानी नहीं, टिप्पणी. हम तो देख रहे हैं. Anurag, you are the sole property of Alka Jalan. Nobody takes you. अभी चश्मा क्यों लगा लिए? अच्छा गौरव, आपको चश्मा उतारना याद रखिएगा. हाँ. I look little bit more mature with this. वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, I'll remove it. हाँ. हाँ, ये जम रहा है ना. एक सेकेंड, I have a call. एक सेकेंड. हेलो. हाँ सुंदर जी, मिला. शुरू हो गया. हाँ हाँ हो गया. हाँ. अब और ये तो बिजी हो गई, और कोई कहाँ गए सब? अनुराग. जी आंटी. ध्यान से. सूक्ष्म. Yeah. सब लाइव है, हम लोग सब लाइव ही है. You're ordering what? Coffee, tea or me? Yeah, 100%. Roji is already entered. You can also enter. हाँ हाँ हाँ. I'm just suggesting one thing. Absolutely. मतलब, can we only 3 of us be unmuted when the program starts? Yeah, that's going to happen. In the beginning, only Alka ji will be also unmuted, and me in case of any instructions to be given. Otherwise, during the course of program, mute कर देंगे. We all will be on mute. One thing, I'm keeping the chat open. In case of anything, I'll message you. Okay. The chat will anyway be operating. That has to be open. I'll message you, मतलब to Suyash Mimani. Right. Do that. हाँ, सुरेखा, please keep everyone on mute because poetry में बीच में कोई कुछ बोलेगा तो बहुत problem होगा. नहीं, everybody will be on mute. Supriya, Rudranil is there now. He's going to manage the thing. Okay. So just let him know if you all have anything else because he's. But you will be there, no? I am there. हम लोग तो लटक ही गए हैं, अब अटक गए हैं. अच्छा, सुरेखा, I'm messaging you. Check that. Yeah, I'm listening. अब क्या प्राइवेट बात है? बहुत प्राइवेट है हम लोग का. आंटी, हम और आप भी कर लेते ना मैसेजिंग. हाँ, अब तो सुबह से ही हो रहा है. रोज ही होता है ऐसे बोलना. हम आपको भी प्राइवेट वाला मैसेज फॉरवर्ड कर देते. तो कल रात में विनीता हमसे 1:30 बजे पूछती है, तुम किससे फोन में बात कर रहे हो? तो हम बोले अलका आंटी. तो बोले तब ठीक है, तब सो जाओ. ये गलत बात है. हमारे को यूज कर रहे हो तुम, बेचारी को धांसा दे रहे हो. अच्छा अलबा है, हम भी ध्यान रखेंगे. चालू हुआ बाबू का? देखो. Currently, all these people who are online, they can hear us? Yeah, they can all hear you. For sure. एकदम. Yeah. Imagine. अभी कोई है नहीं शायद, है क्या कोई? हाँ, there are people who have joined Alka ji. हाँ. घंटी मत कर. कितने लोग किए हैं? हाँ? Including the 4 or 5 of us, there are 15.
Oh, Suyesh is also there. Yeah. So I'm thinking people are joining slowly. Yeah, they'll all join by 7. मतलब by 7 you will see the entire this thing. इतने सारे जूम हो रहे हैं, कोई फ्लो से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो सबको टाइम लगती है. अब Zoom is become like roti chawal dal. But Appaji called. She said that please find an alternate to Zoom now because ये of the Chinese है. Chinese this thing. I am not. Supriya, you will need to help us with this. Why don't you all go into YouTube, na? Like that's the best thing. With so No, many Google- elders in our Google Meet foundation, is also Gaurav. very good. It's more simple. It's really simple. No password, nothing. Okay, okay. और टीवी पर भी देख सकते हैं. And you can watch it even like 1 day after, 2 days after, anytime. It just stays there. The session Yeah. stays there. आप लोग का नहीं, और- कितना बड़ा लाइब्रेरी बन जाएगा. और टीवी पर भी देख सकते हैं. हाँ, टीवी पे देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं. ठीक है, let's we'll do our next session on YouTube only. We'll have to stop this Zoom now. Yeah, so when you call us for the next session, then we'll do that on YouTube. Done. Unless we bore you enough today. So What rubbish. I was telling Alkaji the flow was so good that day. I was hardly there for 10 minutes or whatever. But I was quite enjoying the way each one of you, and it's nice, you know. Okay, I think now there are too many people. So we'll mute. So now we should all get keep quiet now. Yeah. Okay. तो वो चला. Rudril, you can pay the video then till for 5 minutes and then let the session start. शुरू करें. Yes, Alkaji, start. Good evening, friends. It's an Alka Jalan Foundation initiative to celebrate homegrown talents.
Join us this evening to experience the soulful and engaging harmony between music, poetry, songs, and renditions, creatively put together by our very own three ardent practitioners of music and literature, Gaurav Gupta, Anurag Podar, and Supriya Nevar. Looking forward to seeing all of you over Zoom. Zoom in and please share your comments on the chat window. कोई सुना नहीं. With warm personal regards, over to you all. Thank you. Rudranil, please mute everybody now. There should not be a single speaker Sound. which should be on sound then when the session starts, please. Tell us when to start. Start. I think we can start. Shall we start? Yeah. ओके नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबों का आज के शाम में जिसका नाम हमने रखा है यलगार हो। पिछले कुछ दिनों से कुछ दोस्तों ने जिनको मालूम चला कि हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं पूछ रहे हैं कि भी यलगार हो क्या चीज है, ऐसा नाम क्यों रखा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यलगार एक तरह का आह्वान है, इट इज अ बैटल क्राई, इट इज अ वॉर क्राई। और मुझे यकीन है कि आप सबों ने मुगले आजम तो देखी होगी, तो एक बड़ा शानदार डायलॉग था पृथ्वीराज कपूर साहब का कि यलगार हो, तो वो दिमाग में था। और ये भी बात है कि हम सब इस दौर से जो गुजर रहे हैं ये अपने आप में एक छोटा मोटा युद्ध या यूं कहे ऐसा इस तरह का समय सब ने मिलके कभी देखा नहीं, तो कुछ नाम ऐसे फिट हुआ कि यलगार हो। अगले 1 घंटे में हम आपको कुछ बहुत ही चुनिंदा कविताएं शेर व शायरी शेयर करेंगे और कुछ उनमें से सुना हुआ होगा, कुछ शायद नया हो और भी कुछ होगा, वो धीरे धीरे आप देखते जाइए। एक सवाल और भी उठता है कि यलगार हो के बीच कविता क्यों? तो हम लोगों का ऐसा सोचना और मानना है कि कविता या शेर व शायरी सिर्फ कुछ लफ्ज नहीं है, ये अपने आप में बहुत शक्ति देते हैं। कभी कभी एक पथ जो हमें नहीं दिखता है उसको हमारे सामने अगर कोई अंधकार होता है तो रोशन करते हैं और कभी कभी सुकून भी पहुंचाते हैं, कोई एक नया पर्सपेक्टिव भी देते हैं। हम शुरू करेंगे आज एक और इंसिडेंट को याद रखते हुए। हाल ही में जो तबाही हमने देखी अम्फन तूफान जो बंगाल में आया और अपने आप में इतनी तबाही कुछ ही घंटों में मचा के गया, तो मुझे सीधा साधा एक नज्म है जावेद अख्तर साहब का, वो ध्यान आया फसाद के बाद, जहां वो डिस्क्राइब तो फसाद को करते हैं, पर जब आप वो नज्म को सुनेंगे अभी कुछ पलों के अंदर तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये अम्फन तूफान का ही डिस्क्रिप्शन हो। तो आज की शाम हम शुरू करेंगे। मैं अनुराग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सामने वो जावेद साहब की आला नज्म रखे फसाद के बाद। थैंक यू सुप्रिया। सभी श्रोताओं को ज्वाइन करने वालों को हमारा नमस्कार एंड शुक्रिया कि आप सब लोगों ने अपना समय निकाला और हमें सुनने के लिए आए। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए, जैसा सुप्रिया ने कहा, जावेद अख्तर साहब की कलम से एक शेर फसाद के बाद। गहरा सन्नाटा है, गहरा सन्नाटा है, कुछ मकानों से खामोश उठता हुआ गाढ़ा काला धुआं, मैल दिल में लिए हर तरफ दूर तक फैलता जाता है। गहरा सन्नाटा है, लाश की तरह बेजान है रास्ता, लाश की तरह बेजान है रास्ता। एक टूटा हुआ ठेला उल्टा पड़ा, अपने पहिए हवा में उठाए हुए आसमानों को हैरत से तकता है। एक टूटा हुआ ठेला उल्टा पड़ा,
अपने पहिए हवा में उठाए हुए आसमानों को हैरत से तकता है, जैसे कि जो भी हुआ उसका अब तक उसको यकीन आया नहीं। गहरा सन्नाटा है। एक उजड़ी दुकान चीख के बाद मुंह जो खुला का खुला रह गया। एक उजड़ी दुकान चीख के बाद मुंह जो खुला का खुला रह गया। अपने टूटे किवाड़ों से वो दूर तक फैले चूड़ी के टुकड़ों को हसरत ज़दा नजरों से देखती है। हसरत ज़दा यानी उदास आशा भरी नजर। एक उजड़ी दुकान चीख के बाद मुंह जो खुला का खुला रह गया। अपने टूटे किवाड़ों से वो दूर तक फैले चूड़ी के टुकड़ों को हसरत ज़दा नजरों से देखती है कि कल तक यही शीशे इस पोपले के मुंह में 100 रंग के दांत थे। गहरा सन्नाटा है। गहरा सन्नाटा है। वाह, शुक्रिया। क्या बात। क्या बात तो है, पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतनी परेशानी क्यों है? गौरव, मुझे याद पड़ता है कि पिछले हफ्ते अपनी बातचीत कर रहे थे तो इस परेशानी की माहौल में और इस सन्नाटे भरे दौर से जो हम गुजर रहे हैं, इसके ऊपर आपने बड़ा सुंदर शेर मुझे सुनाया था। क्या आज सबके बीच साझा करेंगे वो? हाँ, जरूर सुप्रिया। ये महामारी या एपिडेमिक, जिसको उर्दू में वबा कहते हैं, जिसने हम सबको जकड़ रखा है, इस पर हसन नईम, जो उर्दू के एक प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट शायर हैं, उनकी एक शेर अर्ज करता हूं। इरशाद। सब परेशान हैं कि आखिर किस वबा में वो मिरे। सब परेशान हैं कि आखिर किस वबा में वो मिरे। जिनको गुर्बत मीन्स पॉवर्टी, जिनको गुर्बत के अलावा कोई बीमारी न थी। जिनको गुर्बत के अलावा कोई बीमारी न थी। और किस मौसम में जब ताउन फैला है, और किस मौसम में जब ताउन फैला है, जर्रा जर्रा यानी कतरा कतरा, जर्रा जर्रा है वबा के खौफ से सिमटा हुआ। सब परेशान हैं कि आखिर किस वबा में वो मिरे। जिनको गुर्बत के अलावा कोई बीमारी न थी। और किस मौसम में जब ताउन फैला है, जर्रा जर्रा है वबा के खौफ से सिमटा हुआ। बहुत खूब। पर एक बात फिर ध्यान में आती है कि क्या ऊपर वाला हमसे वाकई इतना परेशान है? क्या इतना खफा है? क्या हमारे और उसके बीच फासले इस कदर बढ़ गए हैं कि हम बिल्कुल कट गए हैं ऊपर वाले से? मेरी मेमोरी जाती है उस गाने की ओर जो 1950s में साहिर साहब ने लिखा था, खयाम ने म्यूजिक दिया था, और राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी में बहुत ही सुंदर, हालांकि 1955 का ये गाना आज भी हमारे ऊपर लागू होता है। आप में से कुछ ने तो गैस कर लिया होगा, जी हाँ, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। पर इसको अगर पढ़ा जाए तो बराबर नहीं होगा, नाइंसाफी होगी, खासकर जब हमारे बीच अनुराग जैसा सुंदर गायक मौजूद है। अनुराग, जरा तरन्नुम में हो जाए, आसमां पे है खुदा और जमीन पर हम। थैंक यू सुप्रिया, इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम के कारण ये गाना एक बार फिर दोहराया गया, सो आई एम जस्ट एक कोशिश, मुकेश साहब की आवाज में ये गाया हुआ है। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं।
किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोका नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, किस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जब उसे ही गम नहीं क्यों हमें हो गम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। वाह, बात है, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। पर ये खुदा भी ना एकदम से हमसे नहीं रूठता होगा। मैं नहीं मानती हूँ कि खुदा हम अपने बंदों को एकदम से एक दिन में रूठ जाता होगा। कई मौके देता होगा, कभी कभी इशारों से समझाता होगा, बात न बन पड़े तो चेतावनी भी देता होगा। एक चेतावनी हजारों साल पहले कृष्ण जी ने दी थी, याद है ना आपको? किसको दी थी? हाँ जी, दुर्योधन को दी थी। और ये बात लिखी किसने? वन एंड ओनली रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखी रश्मि रथी में, कृष्ण की चेतावनी। आपकी इजाजत से मैं पेश करती हूँ कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था उनका संदेशा? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन ने उत्तर क्या दिया? दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। अगली 2 पंक्तियां बड़ी फेवरेट है मेरी, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डिगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तो आया है,
जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आके मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायशगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। इतना सब सुनकर क्या हुआ, थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, केवल दो नर न अघाते थे। कौन से वो दो नर, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन था और विदुर जिसको दूर की दिखती थी। तो केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। कृष्ण की चेतावनी। वाह सुप्रिया, Really nice. वाकई ऐसी कविता सुनने के बाद लगता है कि निराशा की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम सब अपना काम और कर्म ठीक से करते रहें और करते जाएंगे तो हमारा पथ अपने आप ही प्रशस्त हो जाएगा। एक कविता ध्यान में आ रही है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। समझो जग को न निराश अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को। नर हो ना निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। तुम स्वतः रसपान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। देव रूप रहो भवकानन को, नर हो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, बनता बस उद्यम ही विधि है। मिलती जिससे सुख की निधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो दिख निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो। ब्यूटिफुल, रियली नाइस। अच्छा सुप्रिया, थोड़ी नाराजगी है तुमसे। अच्छा। अभी हाँ, कुछ दिनों पहले आई गॉट अ फॉरवर्ड फ्रॉम समबडी एंड यू नो
मैं नज़रअंदाज कर दिया उसको, इतने फॉरवर्ड्स आ रहे थे अभी, तो आई थॉट फिर से कुछ अम्फन का कुछ होगा. बट देन व्हेन आई वाज क्लियरिंग माय गैलरी, आई डोंट इवन नो हु फॉरवर्डेड इट टू मी, so I saw in that thumbnail Auqat by Supriya Nevar. So then I got to listening, got about listening to it. और फिर मुझे लगा चलो ठीक है, और लोगों का काम बंद जरूर हो गया है, लेकिन तुम्हारा काम बंद नहीं था, and you were at it, at your work, at your profession, your vocation, even while the lockdown was on. So सुनाया जाए औकात हम सबको. अनुराग, ये तो बहुत बड़ी जुर्रत होगी कि रामधारी सिंह जी दिनकर के बाद और मैथिली शरण गुप्त जी के बाद मैं अपनी कविता पढूं, पर क्योंकि आपने नाराजगी ऑलरेडी व्यक्त कर दी है और नाराज ना हो, इसलिए मैं ये गुस्ताखी कर लेती हूँ. हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हमारे सामने आया. सिर्फ ये नहीं कि लॉकडाउन था और यहाँ अम्फन हुआ, ये भी कि एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट था कि हम कभी कभी सोच बैठते हैं कि पता नहीं हम कितने ऊंचे कद को प्राप्त हो चुके हैं. तो ये जो महामारी और एपिडेमिक फैली है, ये जरा एक बार हमें अपनी औकात याद दिला दी, ऐसा मुझे लगा. तो ये कविता मैंने लिखी, औकात, आपके सामने है. नदियों में बांध लगा दी, पर्वतों को किया पार. नदियों में बांध लगा दी, पर्वतों को किया पार. परमाणु के टुकड़े कर बस में किया पूरा संसार. नदियों में बांध लगा दी, पर्वतों को किया पार. परमाणु के टुकड़े कर बस में किया पूरा संसार. फिर एक कीड़े बर का कीटाणु देता हमें चुनौती है. एक कीड़े बर का कीटाणु देता हमें चुनौती है. इतनी मजाल इस नाचीज की, पता नहीं हमारी क्या हस्ती है. संगीन से संगीन शत्रु को किया हमने बस में है. संगीन से संगीन शत्रु को किया हमने बस में है. कीटाणु एक बार दिख जाए फिर वह हमारे वश में है. पर जालिम ने हमें कुछ कैद किया है ऐसे. जालिम ने हमें कुछ कैद किया है ऐसे. पंख होते हुए भी उड़ान भर नहीं सकते जैसे. सदियों से गुरुजनों ने जो पाठ था पढ़ाया, सदियों से गुरुजनों ने जो पाठ था पढ़ाया, कीटाणु के एक प्रहार से आज समझ आया. इस धरती के हम नहीं अकेले बाशिंदे हैं. इस धरती के हम नहीं अकेले बाशिंदे हैं. बराबर के हिस्सेदार फूल पौधे और परिंदे हैं. इस धरती के हम नहीं अकेले बाशिंदे हैं. बराबर के हिस्सेदार फूल पौधे और परिंदे हैं. करनी होगी इज्जत हमें छोटे बड़े हर प्राण की. करनी होगी इज्जत हमें छोटे बड़े हर प्राण की. शक्ति नहीं जिम्मेदारी समझनी होगी बलवान की. संभल गए हम आज भी तो देर पर दुरुस्त आएंगे. संभल गए हम आज भी तो देर पर दुरुस्त आएंगे. वरना हमारे आने वाले कल पीढ़ियों तक पछताएंगे. औकात. क्या बात है सुप्रिया, वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है. ऐसे में एक मिर्जा गालिब की शेर बहुत सटीक बैठती है, और मिर्जा गालिब ने लगभग आज से 170 साल पहले ये शेर लिखे थे, जो लगभग आज भी मतलब इस लॉकडाउन के समय में एकदम फिट बैठते हैं. And perhaps the most searing announcement of self-imposed social distancing, and long before this term has gained currency in our current times. Right, right. Is this ghazal by Delhi's preeminent poet Mirza Ghalib. पेश करता हूं. रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो. रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां अब कोई न हो. हम सुखन कोई न हो. हम सुखन, no one who speaks to me in my language. हम सुखन कोई न हो और हम जबां, no one to talk to. हम जबां कोई न हो. बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए. बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए.
कोई हम साया न हो और पासबां कोई न हो। कोई हम साया, नो नेबर्स, और पासबां, नो वन टू प्रोटेक्ट इट। दोबारा अर्ज करता हूं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो। हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई न हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए। कोई हम साया न हो और पासबां कोई न हो। वाह गौरव, शेर तो लाजवाब था। पर एक कौतूहल है मेरा कि इतने हम सब अलग अलग हो जाएंगे, इतने एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बातचीत किस तरह हो पाएगा? बातचीत किस तरह हो पाएगी? वार्तालाप किस तरह हो पाएगा? आखिरकार कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक समस्या यह भी हुई, हमने सब देखा ऐसी तस्वीरों को, जहां माइग्रेंट लेबर्स अपने अपने गांव वापस जाना चाह रहे थे अलग अलग शहरों से, और उनके परिवार वाले भी, क्योंकि बहुत जनों के तो इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने फोन को भरवा ले वापस, तो उनके एक संदेशे को वो डीक रहे थे कि किसी तरह पता चल जाए कि वो सब ठीक हैं। एक गाना बहुत प्यारा मुझे याद आता है, ये 4G के जमाने का पहले का लिखा हुआ गाना है कि एक संदेशे का वैल्यू क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने लिखा था और बॉर्डर मूवी में यूज किया गया था। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। नो मार्क्स फॉर गेसिंग, अनुराग will present it for us. थैंक यू सुप्रिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। इट्स अ वेरी लॉन्ग सॉन्ग एंड द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग आर एक्सट्रीमली मूविंग एंड टचिंग। ये सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ जी ने गाया है। और अभी जो जिक्र सुप्रिया ने किया और जो परिस्थिति इसमें एकदम फिट बैठती है, आई एम गोइंग टू सिंग दैट पार्ट व्हिच हैपेंस टू बी माय फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड व्हिच हैज ऑलवेज टच्ड अ कॉर्ड इन माय हार्ट। सो आई विल जस्ट ट्राई टू सिंग इट एंड ऑफ कोर्स विदाउट म्यूजिक हियर। तो खुले गले तो और मजा आएगा। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहाँ थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से। किया जो वादा वो मैं निभाऊंगा। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।
लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। थैंक यू। क्या बात है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। So, it's actually very strange how resilient we all can become in the toughest of times. और कुछ कुछ ऐसी शख्सियत हमारे हिस्ट्री में हुई है जो हर समय हमें प्रेरित करती आई हैं। एंड in fact, one of those characters has been झांसी की रानी। हम लोगों ने सब उसके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है। तो मैं सुप्रिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो हम सब ने स्कूल में सुना है, पढ़ा है, एग्जाम में चीटिंग करके सब लोगों से लिखा भी है, तो सुप्रिया, कैन यू प्लीज रिसाइट दैट फॉर अस? बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, मेरी बहुत फेवरेट कवयित्री हैं। पर इसके पहले 2 लाइन मैं अपने तरफ से, आपका ये संदेशा आते हैं सुनकर मुझे याद आ गया कैफी आजमी की, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप खुद ही मतलब निकाल लेंगे कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, और पेड़ के काटने वालों को यह मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को यह मालूम तो था कि जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेशे खिदमत है झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, काफी लंबी है तो मैं अपनी कुछ फेवरेट वर्सेस आपको सुना रही हूँ, पैराग्राफ्स। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, भ्रिकुटी इज द आईब्रो। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबेली थी, कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, लक्ष्मीबाई नाम था उनका, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के धार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और करना खूब शिकार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और करना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुछ पैराग्राफ स्किप करते हो। रानी रोई रनवासों में बेगम गुम सी थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानी रोई रनवासों में बेगम गुम सी थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नौलखार, यूं पर्दों के इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
जाओ रानी याद रखेंगे यह कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे यह कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास आपको भूल जाए, होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे लेहर गोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। शुक्रिया। क्या बात है सुप्रिया, आपने तो सबको एकदम जोश में भर दिया है। मैंने नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। पर वाकई ऐसी हस्तियों, इंसिडेंटली परसों झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई जी का डेथ एनिवर्सरी था, 150 साल पूरे किए उन्होंने। ऐसी हस्तियों की जीवनी हमें आदर्श और सपने दोनों ही दिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। ये एहसास दिलाते हैं कि हम उन्मुक्त हैं और पिंजड़े में बंद होकर सदा नहीं रह सकते। इसी व्यथा को सुनाती एक बहुत सुंदर कविता है, शिव मंगल सिंह जी सुमन की कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आशा है आप में कई लोगों ने इस स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। मुझे आज फिर इसे दोहराने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार फिर दोहराइए, हम सभी उन्मुक्त गगन को थोड़ा बहुत भूल चुके हैं। प्रस्तुत है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पानी, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। क्या बात। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बहुत खूब गौरव, एकदम सही बात है कि पंख दिए हैं तो उड़ान में विघ्न न डालो। दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि जब सब कुछ एकदम से ठहरा हुआ सा हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिनों से हम महसूस कर रहे हैं, सबकी उड़ानें कुछ कुछ तक कम हो गई हैं, बंद हो गई हैं, रुक गई हैं, कुछ परेशानी है। दो शेर है, कैफे आजमी साहब को एक बार फिर दोहराती हूँ, आशा है आपको पसंद आएंगे।
कि खारो खस तो उठे रास्ता तो चले। खारो खस कहते हैं उर्दू में फॉग को। जब आपके सामने अगर आप गाड़ी चला रहे हो, वॉक कर रहे हो और फॉग आ जाए तो सामने कुछ नहीं दिखता। खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो उनको हवा तो चले। खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। क्या हालांकि शुक्रिया। हालांकि ये तो मुझे और हम सबको यकीन है कि ये खारो खस जल्द ही अपने बीच जो आया हुआ है उठेगा। और यही दुआ है सबके लिए कि सब अपना अपना ख्याल रखें, खूब अपने आसपास का ख्याल रखें, जिन जिन का हो सके उनका हाथ थामे। और जल्द ही एक सुबह फिर हम देखेंगे जब रोशनी पूरी होगी, उड़ान उड़ान हमारी पूरी होगी। वो गाना एक बार याद आ जाता है, अमर सा है। एक बार 1955 का गाना हम 2020 में दोहराएंगे कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और हमारे साथ गौरव हैं जिनके ऊपर मुकेश की आवाज बड़ी जचती है। आप देखिए तो जचती है कि नहीं। गौरव एक बार जरा सुनाएंगे वो सुबह कभी तो आएगी, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट्स के, बिल्कुल खुले गले। जरूर सुप्रिया, ये मेरा भी बहुत पसंदीदा गाना है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह
कभी तो आएगी। बहुत खूब गौरव, क्या बात है। मुझे बहुत यकीन सुंदर। नहीं लगा है कि वो Really सुबह nice. जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। At least you are hopeful for some light at the end of the tunnel, which is clearly not visible now, but this song kind of makes you feel that हाँ चलो कहीं सुबह तो आएगी. जल्दी आएगी। So शाम तो हंसी कटी, and I am really thankful for all of you कि आप सब लोगों ने अपना वक्त निकाला और हम सबको सुना. तो आशा है कि आप सबको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी, यलगार हो. एंड विद दिस मैं आज के इस शाम को विराम देना चाहूंगा, एंड वी विल टेक योर लीव नाउ. सो थैंक यू सो मच once again for joining. And just before we leave, matlab, we have enjoyed putting up this program so much that we are actually more grateful for, getting the opportunity to do it. We spent lovely evenings together, curating this program. And despite, technical glitches, no internet, no musical support whatsoever, but it's been great fun for all of us. और अब जाते जाते हम लोग विलियम शेक्सपियर को कैसे भूल रहे हैं? Finally some English at last. बात तो हिंदी उर्दू पोएट्री की थी, आप शेक्सपियर, अच्छा शेक्सपियर सारानी भी तो है, चलेगा। शेक्सपियर को हमने जहाँ सारानी में घुसा दिया, तो शेक्सपियर साहब को क्यों भूला जाए? बिल्कुल ले आइए उनको। जब तक नाम बदले नहीं तब तक बोल लो. हाँ। So शेक्सपियर का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है Macbeth. It's a dark play. And I'm remembering Macbeth's opening lines, which relate to our dialogue today. So it begins like this: Act 1, Scene 1. When shall we meet again? In thunder, lightning, or in rain? When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy air. Thank you so much. नमस्कार. Thank you. मुझे एक ही दुविधा है अभी, और मैं अलका जी से बाद में पूछूंगी. पिछले कुछ दिनों से तो हम हर शाम को, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हर शाम को हम यलगार हो को पुकार दे रहे हैं. कम से कम हम तीनों बैठ के घंटे 1.5 घंटे ये कविता रखनी है, नहीं ये नहीं जच रहा है, वो जच रहा है, ये सुर नहीं बैठ रहा है, ये तानपुरा के बगैर सूना लग रहा है. इस तरह से हफ्ते भर से 10 दिन से हम लगे हैं इसके पीछे. 19 की शाम तो कट गई, पर 20 तारीख को हम क्या करेंगे, ये यलगार अभी पूरी नहीं हुई. Thank you so much all of you for joining. Really hope you've enjoyed our little effort. Or keep your optimistic side on. It will help to stay positive. Help those around you also who may be going through a rougher patch than perhaps we are. And inshallah जल्दी मिलेंगे और हाथ मिला के मिलेंगे, और ये भीषण महामारी से ऊपर वाला हमें जरा सा मुक्ति देगा. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. Alka ji? And we'd like to thank the Alka Jalan Foundation, Alka Auntie, and her entire backend team, Sureka, and everybody to host this program for us. Thank you so much. Thank you. I think you all were fantastic. How smoothly this has gone. It was absolutely brilliant. Brilliant is the word. The network gods have been kind. Yeah, but you three were fantastic. I don't know why Alka ji is not, can you unmute Alka ji, please? On mute, please unmute her. I think she's trying to say something, but she's on mute. Yeah, so 1 second, Rudranil will have to unmute. Rudranil, please do the needful. And the chat is flooded with compliments. Oh. I mean, that's like, So I'm going to say it. हमारे तो लॉकडाउन हो गया. सुनिए, तो लॉकडाउन हो गए, एकदम मुंह बंद हो गया, शब्द ही नहीं रहे कहने को. क्या बोले, हमको तो 3 मस्कीटोज मिल गए, एकदम उछाल दिया आपने आसमान पर. अब तो जिएंगे, उड़ेंगे. उड़ेंगे. Thank you so much all of you.
I'll just take a minute to announce our next event also, please. Supriya, I'll Yes. just announce our next event, please. Yes, Uh, please. the next week on the Saturday, we have, not this Saturday, the next Saturday, 27th, we have Mrs. Malvika Sarukai, the dancer, and director Mantra Ghoshal, in conversation with Darshan Shah on her project, Hari the Loom. So kindly everybody save your date for that event. And Supriya, now to you, over to you. Well, we are basically done. In case there are any comments or questions that you might want us to take, then you can share some. Comments are flooded. I mean, if I Oh. just have to open it, and there is this one Right. girl who put up a very interesting thing. So I'll just cut you short here, Surekha. I'm just going to copy paste all of them, all of it, and the three of us are going to share it, and probably Absolutely. that's our food for the weekend. Absolutely. Fantastic. किसी ने I- कहा एवरी फ्राइडे होना चाहिए. हम ऐसा करते काम धाम छोड़ के हर दिन एक यलगार को पुकार देते हैं. ऊपर वाला इतनी शिद्दत से यलगार को सुन ही लेगा. एकदम बिल्कुल. I am definitely going to recommend this to Delhi and Bombay, to my contacts out there. You all definitely need to take this ahead further. I think you all were fabulous. Yeah. So thank you all so much for Thank you joining. so much. I can see friends who've joined in from overseas, and I can see all good friends and well-wishers from all parts of the country. Thank you so much. It's just so lovely to at least see you all on screen. Jaldi milenge, or take good care of yourselves. No, Anurag, Thank there's a you. request for one more song. So before we close, it would be really nice if Anurag could just sing a song for everybody. I think there has been a request. Anurag, would you do it, please? I don't really know what song is going to be appropriate now after Sing. this. So I think Anurag, sing. It'll be nice. It'll be a perfect ending, I think. I think we'll curate another program because Yes, really, curate something else. yeah, I'm really blanked out as to what I can sing now. So I think it'll spoil the flavor of the evening, which is already set in so Okay. beautifully. Done. So We'll come back with an encore. Gaurav wants to say something. So we are going to sing 2 lines of a song. We had thought we are going to sing it. Perfect. China episode started and we got scared. Perfect. Perfect. So Anurag, please sing the 2 lines, and we are not causing any disrespect to anyone, but it's sort of fitting in also now. So which one? Acha, oh, China Arab hamara, Hindustan hamara, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, Chino Arab hamara. Then we just wanted to be politically correct, and there it all goes away. हम ये गाना इंक्लूड कर रहे थे, पर बॉर्डर पर जो हालचाल है, हमने चीनो अरब हमारा हटा दिया. चलिए जी, thank you so much. Take good Thank care of you. yourself. And Thank see you. soon. We will end the meeting now. Yeah. Yes. Okay. Namaskar. Bye. Namaskar.